Hello students, welcome back to our channel. Today we will discuss about GST, that means goods and service tax. So goods and service tax, that means goods और सर्विस के बेस्ड पर अगर टैक्स लग रहा है तो उसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलेंगे। तो बिफोर दैट जितने भी टैक्सेस लगते थे वो सारे टैक्सेस एक मर्ज हो गए और एक नया टैक्स के नेम से हमने इसको अब स्टार्ट किया है, विच नेम इज जीएसटी। सो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ऑल टैक्सेस जो हैं वो सारे टैक्सेस को एक नाम दे दिया जाए, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि सारे टैक्सेस एक मर्ज हो गए और अब उसको हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों ही कवर हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट हमने जो यहाँ दिया हुआ है सेंट्रल जीएसटी। तो सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी बोथ विल फॉलो इंट्रा स्टेट टैक्सेस। हाउ? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। यहाँ पे हमने लिखा है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दैट मीन्स इंट्रा स्टेट, इफ ट्रांजेक्शंस under state or intra-state, that it becomes central GST and state GST। मतलब ये होगा कि अगर आपने इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन किया है, मतलब किसी भी स्टेट के अंदर ही वो सो लेट्स सपोज कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो यू विल डिवाइड इट इक्वली 6% फॉर सेंट्रल जीएसटी एंड 6% फॉर स्टेट जीएसटी। ओके, so under state transactions है that it becomes CGST and SGST, central and state GST. Now comes to the third point, which is integrated GST. Integrated goods and service tax is imposed on entire state supply, or you can say sale outside the state. Okay, outside the state of goods and service, import of goods and service into India and export of goods and service from India. So it is quite simple. If your transactions under states, not under state, that means it is if you are doing transaction interstate, that means state to state. Suppose if you are taking goods from Haryana and you are living in MP or Madhya Pradesh, so it call be interstate supply। तो अगर आप ऐसा कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो स्टेट टू स्टेट हो रहा है, दैट इट बिकम्स इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो यहाँ पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा लाइक 18%, सो यू हैव टू पुट 18% टुगेदर। जैसे हमने सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड किया था, यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हम सीधे सीधे यहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगा रहे हैं और इसको हम शो करेंगे आईजीएसटी से। ओके, सो क्वाइट सिंपल, जीएसटी सेंट्रल स्टेट एंड इंटीग्रेटेड, CSNI। CS will be applied for the intra-state and integrated GST applied for the interstate, that means state to state. Okay, comes to the next slide. So we will discuss about the general entry also. Accounting procedure. What is the accounting procedure in case of intra-state sale of goods and services? Suppose हम intra-state sale कर रहे हैं, it can be goods or service or for both. So if you are purchasing goods, okay, if you are purchasing of goods, that means purchase always be debited. Okay, so you are purchasing, so purchase account debit to cash. Generally we made an entry for the purchase. अगर आप purchase करें तो purchase will debit and what goes out? Cash. So cash will be credit. So we will put input GST and input SGST also. How? Let take example. Suppose we are purchasing 10,000 rupees of goods. Okay, and there is a rate of interest is 18%. ठीक है, so you will divide it into two part, what? 9% and 9%. So what will be the entry and what will be the amount of 10,000? 9% is 9% will become what?
900. So you will enter 900 input GST and SGST also. You will write 900 input GST, CGST and input SGST, 900 and purchasing value is 10,000 rupees. So we will pay 1800 extra, that means total amount will be 11,800. तो हम इसे इस तरीके से एंट्री करेंगे. अगर आप 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज कर रहे हो, you will charge whatever the rate of interest. We are just taking an example. So if you are purchasing 10,000 rupees goods, 18% is total GST, divided equally 9%, 9% charge and total value will be 11,800. Suppose if your sell of goods, so what will debit? Cash will debit because cash comes to sales. This is the journal entry. Okay, now we will write to output CGST to output SGST. जैसे हम परचेस करेंगे, it is expenses for us, it becomes input because आ रहा है. अगर आप सेल कर रहे हैं then it becomes output क्योंकि ये जा रहा है. So whenever you are selling goods, cash account debit to sales. Okay, now output CGST and output SGST भी साथ में क्रेडिट हो जाएंगे. तो we will write as to output CGST account to output SGST account. Again suppose इसी एग्जाम्पल को हम फॉलो करें तो यहाँ पर वापस से आपको 900 और 900 की एंट्री करनी होगी और सेल्स में आपका 10,000 रुपीज़ हो जाएगा और टोटल अमाउंट यहाँ पे 11,800 रुपीज़ हमको एंट्री करनी पड़ेगी. ओके, तो व्हेनेवर आप इनपुट जीएसटी हो या एसजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, अगर आप जीएसटी चार्ज कर रहे हैं तो ये अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स रिएक्ट करेगा. मैंने फर्स्ट वीडियो में गोल्डन रूल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं. अगर आप परचेस कर रहे हैं देन इनपुट डेबिटेड, अगर आप सेल कर रहे हैं देन आउटपुट क्रेडिटेड. देखिए जब आप परचेस कर रहे हैं यू हैव टू बियर द टैक्सेस, आपको टैक्सेस देने होंगे. व्हेनेवर यू आर सेलिंग, ये टैक्स कौन बियर करेगा? जो परचेस कर रहा है. इस कंडीशन में हम बियर नहीं करेंगे. ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों के लिए एंट्रीज बना करके रखा हुआ है. जैसे इन केस ऑफ इंटरेस्ट स्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट एस एनसीई जीएसटी विल डेबिट टू कैश. ओके, ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास और भी बहुत सारी एंट्रीज हैं. जैसे कि आप देखें फॉर सेल ऑफ गुड्स, ये अभी हमने देखा. फॉर परचेस रिटर्न, अब परचेस रिटर्न के लिए भी एंट्री है. क्रेडिटर विल डेबिट टू परचेस रिटर्न टू इनपुट. ओके, जब परचेस रिटर्न हो रहा है तो जब आपने परचेस किया था तो इनपुट जीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को क्या किया था? डेबिट किया था एज एक्सपेंसेस. नाउ गुड्स रिटर्निंग, सो इनपुट जीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी बोथ विल रिटर्निंग. सो ये नेचर से अकॉर्डिंग ऑपोजिट हो जाएगा. अगर आप देखें फॉर सेल रिटर्न, तो सेल रिटर्न अकाउंट क्या हो गया? डेबिट टू डेटर्स. ये हमारी नॉर्मल एंट्री होती है. तो जब हम सेल करते हैं तो आउटपुट जीएसटी हमेशा क्रेडिट हो जाता है. अब बिकॉज ये रिटर्निंग वाली बात है तो जो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी जो आप पहले एंट्री में क्रेडिट करते थे, अब वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेबिट हो जाएगा. तो कोई भी जीएसटी से रिलेटेड एंट्री हो, आप उसमें कॉन्सेप्ट पुट कर लीजिए, वो बड़ा इजी हो जाएगा. देखिए यहाँ पर परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट है, तो अगर आप फिक्स्ड एसेट परचेस कर रहे हो तो ये डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब आप परचेस कर रहे हो इसलिए आप इनपुट डेबिट कर देंगे CNS. ओके, अगर आप किसी प्रकार का एक्सपेंसेस कर रहे हो तो यहाँ पर आप इनपुट देखिए वापस से डेबिट हो गया, है ना. अगर आप कोई रिसीव कर रहे हो इनकम देन अगेन इट क्रेडिटेड. ड्रॉइंग ऑफ गुड्स है देन इट क्रेडिटेड, बिकॉज जब परचेस करते हैं तो डेबिट, ड्रॉइंग उसका ऑपोजिट होता है क्योंकि वो रिटर्निंग गुड्स होगा, वापस आएगा, इसलिए वो क्रेडिट हो गया. ओके, यहाँ पर फिर और कुछ भी और थोड़े से हमारे पास भी जनरल एंट्रीज बने हुए हैं. जैसे सपोज कि अगर आपको लॉस हो गया है गुड्स बाय फायर, स्टोलन, व्हाटएवर, सैंपल वगैरह,
ऑल बी डेबिटेड, हम जैसे जानते हैं कि एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं, ये सब तो हम डेबिट कर ही रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, टू इनपुट और टू इनपुट एस एंड सी दोनों के दोनों क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। क्यों क्रेडिट हो गए, देखिए बीइंग सोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सैंपल लॉस ऑफ गुड्स ऑफ हायर स्टोरेज, ये सारा का सारा क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है और लॉसेस है। दैट मीन्स कि ये हम बेच नहीं रहे हैं, ओके, ये सारी चीज़ें कॉस्ट टू कॉस्ट हो रही हैं, इसको हम सेल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सेल वाला फंडा अप्लाई नहीं हुआ है। देखिए आप एडवर्टाइजमेंट के लिए सैंपल दे रहे हैं, देखिए आपको लॉस हो गया, थेफ्ट हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं, टू परचेस अकाउंट हमने लिखा, ये सारी चीज़ें कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा लॉस है। तो क्या ये गुड्स हमने सेल किया, डेफिनेटली नॉट। जब आपने गुड्स सेल ही नहीं किया है तो आपकी गुड्स पर जो टैक्स लगेगा उसको कौन बेयर करेगा, उसको आप ही को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने सेल तो किया नहीं है, ट्रांसफर तो हुआ नहीं है किसी और के नाम से। दैट्स वाई ये सारे टैक्सेस कौन बेयर करेंगे, हम ही करेंगे, इसलिए यहाँ पे इनपुट CGST SGST क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट, तो जितना भी टोटल होगा आपका आउटपुट CGST का और जितना भी टोटल आपका होगा इनपुट CGST का, ये इस तरीके से यहाँ पर सेट ऑफ हो जाते हैं, जहाँ पे आउटपुट CGST डेबिट हो रहा है और इनपुट क्रेडिट हो रहा है। सेम एज फॉर द SGST, यहाँ पर आउटपुट डेबिट और CGST SGST यहाँ पे डेबिट होगा और इनपुट SGST यहाँ पे क्रेडिट होगा। और अगर पेमेंट ऑफ GST की बात करें तो जितना भी ये दोनों का डिफरेंस रहता है उसको आप बैंक के थ्रू पेमेंट करते हो, तो बैंक के थ्रू आपके पास से पेमेंट चला जाता है, दैट्स व्हाई इट विल क्रेडिटेड एंड CGST एंड CGST एंड SGST है, ये दोनों के दोनों आउटपुट के साथ डेबिट हो जाएंगे क्योंकि हम बैलेंस का पेमेंट कर रहे हैं। सो इट इज़ क्वाइट सिंपल स्टूडेंट्स। अगर आप देखें ध्यान से कॉन्सेप्ट को तो कहीं पर भी लाइक एक्सपेंसेस आपको नज़र आ रहा है या लाइक लॉसेस आपको नज़र आ रहा है तो आपको उसको क्या करना है, डेबिट करना है, और वहाँ पर आप देखेंगे आपको इनपुट के साथ में डेबिट करना है। जहाँ पे आपने सेल्स की बात करी वहाँ पर आ जाता है क्या, आउटपुट, और आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं और बना सकते हैं। आई होप कि आपको कुछ हेल्प होगी। GST के टॉपिक को आज हमने कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।